तारीख हो रखा है हमारे साथ हाँ इन हरिद्वार. Hope everything is going good so far. So it's an amazing place. 14 degrees Celsius now. Mumbai was 25. Some of you have come from other places, 30, 35. This is 14 degrees. Recently, in Kumbh Mela, 60 crore people came, right? 60 crore. So I was thinking that, almost like one devotee was mentioning, like 1 in 3 Indian has gone to Kumbh Mela. 1 in 3 Indian. India is already a pious country. Now India has become more pious. सबने आपके पाप धो लिए. So now India has become more pious in that sense. But it's an amazing thing. 29th January, there was stampede. And still people went to Kumbh Mela. क्या था? There was nothing free. Right? There was tapasya. Everyone knew. चलना पड़ेगा बहुत. When I went, I walked for 5 kilometers. One devotee came, we walked 15 kilometers. So he told me, Prabhu, you are very fortunate. 5 किलोमीटर चलना पड़ा. मैंने बोला, you are more fortunate. How? Because 15 किलोमीटर चलने के बाद ज़्यादा तपस्या हो गया धाम में, ज़्यादा प्रगति किया. Right? So, how come suddenly we see such a surge of enthusiasm among Indians to go to Kumbh with that 10-hour, 12-hour traffic jam, but still going there? When I was taking bath in Triveni Sangam, I saw people were so happy because they made it. पहुंच गए हम. मेरे already. People were happy because finally they reached Triveni Sangam. सही है कि नहीं? So now, just imagine, people, Kumbh Mela is not something new. Kumbh Mela happens every 12 years. But why so much enthusiasm? Because Kumbh Mela को present किया गया appealing way में. People came to take bath because it was appealing to them. Right? Kumbh Mela is Kumbh Mela. 12 साल में होता है. But this Kumbh Mela was special because Kumbh Mela appealed to them. Nowadays we see many temples, in ISKCON temple also. Every day in the evening, Sandhya Aarti, the whole temple is packed. No one is calling them, please come temple. People come. 80% are youth who come. Sunday it is full. How come? Somehow or other, spirituality is little bit kindling in the hearts of young people. People want to experience. So if we present the same age-old wisdom of Krishna consciousness in an appealing way, people will take. And the proof is, मैं वैसे था. 400 लोग आप लोग आए हैं. किस लिए आए? यात्रा करने के लिए. जनरली यात्रा करने जाता नहीं कोई यंग आदमी. वेकेशन में जाता है, यात्रा को भी जाता नहीं. I remember when I was teenager, my father would take once decided to take me to Tirupati. A friend asked me, कहाँ जा रहा है वेकेशन में? मुझे शर्म आ रहा था बोलने तिरुपति. मैंने बोला चेन्नई जा रहा हूँ वेकेशन पे. चेन्नई से बाहर तिरुपति गए. So there was a time people, especially young people, would never say यात्रा जा रहे हैं. लेकिन हम लोग बोल रहे हैं अभी यात्रा जा रहे हैं, सेल्फी बना के सब भेज रहे हैं. Why? Because this yatra is more than a vacation, right?
vacation is boring. IOS Yatra is amazing. So let us thank IOS Yatra coordinators for organizing yet another IOS Yatra. Hari Bol. अब तक आपको सुनाई दिया मैं क्या बोल रहा हूँ? So good. So this is a very special place we come. Every year, our devotees, they work hard to first decide a place कहाँ लेके आना चाहिए, and then come in advance team and arrange all these facilities, good prasad, good accommodation, good travel, right? So this year, I want to thank them because they got all of us to Haridwar. पहले के जमाने हरिद्वार लोग आते थे रिटायर होने के लिए, सब छोड़ छाड़ के. धृतराष्ट्र रिटायर हो गया ना, कहाँ पर आया था? हरिद्वार आया था. विदुर जी रिटायर हो कहाँ पर आए थे? हरिद्वार आए थे. उद्धव जी यहाँ से आगे गए थे. जो भी रिटायर हो गए जाता था. It's a retirement place. But now, thanks to the wonderful organization of Yatra, that we can come here, retire from material engagements and go back in again practice Krishna consciousness with great vigor. So we are in Haridwar. I will speak about Haridwar, the Katha, but I want to speak first of all what should be our mood in this yatra. Okay? So there are two parts. Mood of the yatra, IOS yatra, and mood of the dham where we are coming. ये दो अलग अलग चीज है. एक है IOS यात्रा का मूड क्या होना चाहिए, दूसरा है जिस धाम में आया है वहां का मूड क्या है. ये है हरिद्वार धाम. इसका मूड क्या है? हरिद्वार is known for two things. One is Ganga coming down, and other is Himalaya Parvat. हम जाएंगे कल देवप्रयाग. We'll enter, we'll climb the Himalayan regions. तो हिमालय और गंगा के लिए मशहूर है. So Ganga and Himalaya, what they teach us? Ganga, when you see here, it is pristine, clear, pure Ganga. So Ganga implies purity here. So mood of Haridwar is people come here to become purified. अपने आप को शुद्ध करने आते गंगा के सानिध्य में, धाम के सानिध्य में. So people come here to get purified. So we have also come to this dham of Haridwar to get purified. How will we get purified? We have only 3.5 days and lot to do. One way to get purified is that in this IOS Yatra, we'll get lot of association of good devotees, senior devotees. In their association, we will hear and chant and purify. We will stay in Dham. We will, in fact, आप नल खोलते हैं ना, गंगा का पानी आता है उसमें. सोचो आप. So we are getting a chance to get purified in the association of Mother Ganga here. So Ganga is for purity, and by associating with Ganga and Ganga-like devotees, we will get purified. This is the place where Himalayas begin. We are in the foothills of Himalayas. हिमालय जो है करोड़ों साल से खड़ा है, टॉल, अचल. करोड़ों साल से खड़ा मतलब है डिटरमाइंड, ऐसा नहीं है. सो हिमालय टीचेस अस डिटर्मिनेशन. हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसमें डिटर्मिनेशन होना इंपॉर्टेंट है. तो क्या होगा? Every day we'll have changing goals, spiritual and material both. In our career, material and spiritual, we require determination. है कि नहीं?
क्योंकि इतना इजी नहीं है कुछ करना। इस दुनिया में कुछ करना इजी है क्या? नहीं है। तो एक बार डिसाइड किया है, उसको एंड तक करने के लिए क्या चाहिए? So when we see Himalayas, we see for thousands and thousands of years they're standing here, right? So from Himalaya we can learn how to be determined in our life, no matter what happens. Sardi, Garmi, Tufan, Rahe Atal, that's Himalaya. So Ganga, Himalaya. Haridwar itself is a dham where all great sages came here. शायद ऐसे कोई महान भक्त होंगे जो आए नहीं होंगे यहाँ पर, मैक्सिमम आके गए। भगवान के अलग अलग अवतार भी आके गए यहाँ पर। जस्ट बाय कमिंग हियर आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस विल इंप्रूव। यहाँ पर बैठने से ही आदमी शुद्ध हो जाता है। अभी आप लोग बैठे, काफी लोगों की आंखें बंद हो रही है, प्रसाद लिया अभी ना, और रात को ट्रेन में सोए ही नहीं सोए पता नहीं, लेकिन बैठ कर सोने में भी क्या हो रहा है? प्यूरिफिकेशन हो रहा है। बैठ के सोने में प्यूरिफिकेशन है, तो बैठ कर सुनने में कितना होगा? So the mood of Dham is, here we have come to learn, learn to be purified, learn to be strong, determined. What is the mood of Ayavas Yatra? The mood of Ayavas Yatra is give us a glimpse of spiritual world. हमें सबको हम कहाँ से आए? भगवत धाम से आए। कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है। कब जाना है? जल्दी जाना है, लेकिन पता नहीं, टिकट हाथ में आया नहीं तो वेटिंग आया, नहीं तो आर आया है, टिकट बुकिंग चालू ही हुआ अभी तक, लेकिन जाना कहाँ है? भगवत धाम। तो भगवत धाम जाने के लिए थोड़ा क्या चाहिए? उत्तेजना चाहिए, उत्साह आना चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। तो जब भगवत धाम में कुछ दिन के लिए आते हैं हम, दिस इज भगवत धाम, दिस इज धाम, हरिद्वार, हरि का द्वार। So we come here and we associate with devotees. Morning till night, we are with devotees. Prasad, devotees. Sleeping next to a devotee. बाथरूम में खटखट आ रहा है, अंदर डिवोटी, बस में डिवोटी, कीर्तन में डिवोटी, जपा में डिवोटी, डिवोटी ही डिवोटी है, सुबह से लेकर शाम तक, रात को भी। कराटे मारने वाला भी डिवोटी, लात मारने वाला भी डिवोटी रात को। So just imagine 3.5 days of devotee association. And this association is guided by senior devotees who have planned how to make best use of our Haridwar. सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, चैंटिंग, प्रसाद रेडी है, उठो प्रसाद लो, बैठो क्लास के बाद बस रेडी, निकलो, वहां जाओ, आ जाओ, प्रसाद रेडी, रूम में जाओ, सो जाओ, सुबह, everything is planned. So 3 days of our experience here is like an experience trailer of spiritual world. After 3.5 days, if we are waiting कब ट्रेन आ रहा है, बॉम्बे का, पुणे का, जहाँ से हम लोग आए पता नहीं, तो इसका मतलब यात्रा ठीक से नहीं हुई। लास्ट डे लगना चाहिए यार, छोटी यात्रा थी और रहना चाहिए। अगर ऐसे एक्सपीरियंस आपको लग रहा है तो इसका मतलब आपका यात्रा सफल। We'll carry memories of yatra and we'll remember those days in Haridwar. So the material world, when we are having our career, our family and all, we go through a lot of problems, gains and losses. At the end of the day, we should think, this is temporary. One day we have to go there. But for that,
I have to not just go for yatra 3 days in a year, but I should have yatra mood every day of my life. So that inspiration comes in yatra. So Radhanath Maharaj mentions on the last day of yatra, today yatra is starting. On the last day of yatra, he said, today yatra is starting. हमारे जीवन में क्या है? यात्रा है ना, है कि नहीं? यात्रा का मतलब घर से निकलो और घर में पहुंच जाओ. हम भगवत धाम से निकले हैं, इस मटीरियल वर्ल्ड की यात्रा कर रहे हैं, और कहाँ जाना है हमको? घर जाना है, भगवत धाम. सो वी आर ऑन ए यात्रा. वी आर चेंजिंग लॉट ऑफ ट्रेन्स. चेंजिंग ट्रेन्स मतलब चेंजिंग बॉडीज. कभी पैसेंजर ट्रेन, कभी एक्सप्रेस ट्रेन, कभी एसी कोच, कभी जनरल डब्बा, कभी ट्रेन सुपर फास्ट, कभी ट्रेन सुपर लेट, है कि नहीं? कभी ट्रेन में आराम से आओ, कभी ट्रेन फुल पैक. ये हमारा एक्सपीरियंस मटीरियल वर्ल्ड में रहा है, अलग अलग शरीरों में. सो नाउ वी आर गेटिंग अ चांस विद इन दैट यात्रा ऑफ मटीरियल वर्ल्ड experience what is home. And Haridwar Yatra, through IYS Yatra, will experience the homely atmosphere of what we were having in the spiritual world. So what is Haridwar? जैसे नाम लिखा है ना, हरिद्वार, हरि का द्वार है. अच्छा, ये द्वार है, गेट है, हरि कहाँ है? तो हरि है बद्रीनाथ. So Badrinath is the resting place, abode of Badri Vishal Hari. This place is also called as Haradwar because it is a gate to Lord Shiva's abode. Actually, whole Himalayas is Shiva's abode only. उन्होंने एक जगह दे दी है बद्रीनाथ, बद्री विशाल जी को जगह दी थी. पूरा हिमालय जो है शिव जी का ही है. So abode, gate to go to Lord Shiva. Ganga Dwar, from here you go to the place from where Ganga originates. गोमुख. तो ये बहुत पावन प्लेस है, वेरी वेरी प्योर प्लेस. इन नेक्स्ट 2-3 days we'll get chance to go to many places. We'll go to Devprayag tomorrow. We will see beautiful Ganga, 2 Gangas coming, Alaknanda and Bhagirathi Ganga coming and mixing. Amazing sight. आपके हाथ दुख जाएंगे फोटो निकाल के. We'll also go to Rishikesh tomorrow on the way back. And there we'll see beautiful Ganga flowing. Prabhupada came to Rishikesh. Rishikesh was the last place before Prabhupada retired to Vrindavan and then he left us. So Prabhupada came to Rishikesh also. Prabhupada said Ganga is so pure. और पानी ऐसे लेके आओ. Prabhupada would drink Ganga water from like this directly. कोई सोचा ऐसा पानी पीने को? इतना शुद्ध गंगा है यहाँ पर. So we go to Rishikesh, we'll see some places there. Devotees will tell pastimes of the place. We'll also go to Shuktal, the place where Srimad Bhagavatam was spoken to Maharaj Parikshit by Shukdev Goswami. We'll also go to Kankal, very close by, where the famous Daksha Mahayagya took place. जहाँ दक्ष का मुंड काट कर बकरा लगा दिया, बकरे का सर. Then happened here only. So beautiful places. 3 दिन में इतना मिल रहा है, पैसा वसूल हो गया. So this place is called as Devbhumi because demigods reside here. देवता का स्थान यहाँ पर पूरा. You are not able to see them, but they come here. Why devatas don't come to Mumbai? They come to Himalayas. Bolo. Because they also have their choices, right? So their choice is to stay in pure places, do their bhajan here. तो ये भजन का स्थल है, ये तपोभूमि है. तो जब हम यहाँ पर आए हैं, हमें क्या करना चाहिए? तपस्या. आप बोले तपस्या क्या करना चाहिए? यात्रा में कुछ ऊपर नीचे हो गया
तो उसे तपस्या मान के स्वीकार करना चाहिए। उस तपस्या से प्रगति होगी। तपस्या मतलब क्या होगा? टाइम पे आना तपस्या है। तपस्या मतलब नींद अच्छी आ रही है, रजाई है, घटिया भी है, ठंडा भी है, फिर भी मैं सबसे पहले उठूंगा कि बाथरूम एक ही। Because if I get up, I will do more tapasya than others. Just imagine, if that is the mood, then everyone will be tapo oriented. है कि नहीं? कोई बोलेगा नहीं पहले मैं, सब क्या बोलेंगे? पहले आप। रियल, दिस इज अ फैक्ट। जितना तपस्या आप करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। जो तपस्या बॉम्बे में करते हैं उससे लाख गुना जब यहाँ करेंगे उसको बेनिफिट मिलेगा। हाउ मेनी वांट टू बेनिफिटेड इन स्पिरिचुअल लाइफ? रेज योर हैंड्स। यू आर इन द राइट प्लेस। तपस्या करना है, चैंटिंग के लिए तपस्या करना है, सुबह जल्दी उठ के माला करना है। जितना जल्दी माला करेंगे सुबह सुबह उतना बेनिफिट मिलेगा। सब कुछ यहाँ करेंगे ऑस्टेरिटी, सबका ऑस्टेरिटी का फल मिलेगा। बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज तपोभूमि। यहाँ अभी भी बहुत से बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा अभी भी है और वो तपस्या कर रहे हैं। उनके बीच में आकर हम क्या करना चाहिए? टाइम पास नहीं, तपस्या करना चाहिए। Tease for time pass and tease for tapasya also. So it's a good chance for all of us to tapasya here. Tapasya by getting up early in the morning. Tapasya by being always attentive in all the schedules. Tapasya in a sense of serving. सेवा करने का चांस है। यहाँ सेवा करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, राइट? तो यहाँ बहुत सेवा है। आई डोंट नो व्हाट सेवा से, बट one seva is prasad distribution. The best seva is come on time, right? So it's an opportunity for doing tapasya, tapabhumi. So Haridwar is tapabhumi, and we are all coming here, taporis, to do tapasyas. बॉम्बे के टपोरी लोग आ रहे हैं यहाँ पर तपोभूमि में, लेकिन कोई बात नहीं। It's a good way of improving our spiritual life. So, Himalayas is very big. It starts from this area, it goes till Assam, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ तक हिमालय है। कितना बड़ा हिमालय, विशाल। तो हिमालय के 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5। एक है कश्मीर खंड, इसमें आपका कश्मीर आता है, उसमें आपका अमरनाथ, वैष्णो देवी आता है। दूसरा है जालंधर खंड, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश का पार्ट आता है, पंजाब का थोड़ा पार्ट आता है, जालंधर खंड। तीसरा है केदार खंड, केदार शिव जी का नाम है, हाँ वो भी केदार खंड में है। उत्तराखंड ये जो है ना, यहाँ का एरिया 4 धाम ऊपर का, लघु 4 धाम, ये केदार खंड में आता है। ये शिव जी का यहाँ पर वास है, यहाँ पर उनका यहाँ पर राज्य है। चौथा है कमाऊ, कमाऊ यानी नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड और पूरा नेपाल, कमाऊ खंड। और 5वां जो है वो है नेपाल, वो है सॉरी, कमाऊ में नॉर्थ ईस्ट उत्तरांचल और नैनीताल आता है। और 5वां है नेपाल, और नेपाल में आपका पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ और वो अरुणाचल प्रदेश सब आ जाता है। इतना विशाल हिमालय से हम इतने छोटे यहाँ एक कोने में बैठे हैं।
Krishna says in Bhagavad Gita, of mountains I am Himalayas. So when you see Himalayas, you should think of Krishna. So in this भारत भूमि, यहाँ पर 7 दिव्य शहरों का उल्लेख है पुराणों में। सप्तपुरी में से एक है हरिद्वार। सो दिस इज मेंशन्ड इन पुराणास, thousands and thousands of years old. ये इतना पुराना शहर हम गिनती नहीं कर सकते कितना पुराना होगा। सतयुग भी नहीं, सतयुग से पुराना है, अनेकों चतुर्युग के पहले की बात है। इतना पुराना शहर है और इतना दिव्य शहर है। शंकराचार्य जी ने एक समय भारत को यूनाइटेड करने के लिए एक कंसेप्ट निकाला था, 4 धाम की यात्रा। तो भारत के 4 अलग अलग कोने में से बद्रीनाथ, नीचे रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और मुंबई, द्वारका। और जब 4 धाम शुरू किया उन्होंने, तो लोग जो हमेशा अपने एरिया में रहते थे, अभी वो ट्रैवल करने लगे। तो ट्रैवल करते थे तो द्वारका में आके देखते थे जगन्नाथपुरी के लोग, और यहाँ के लोग अलग है, इनका कल्चर अलग है, खाना अलग है, बोलना अलग है, लेकिन ये लोग हम जैसे लोग हैं। तो ट्रैवल के कारण भारत का कल्चर जो है सब जगह कम्युनिकेशन होने लगा। साउथ का आदमी नॉर्थ में गया, नॉर्थ का आदमी ईस्ट में, वेस्ट में, तो लोग घूमने लगे तो सीखने लगे। जैसे आप लोग जो है ना, बहुत से महाराष्ट्रियन होंगे, गुजराती होंगे, साउथ इंडियन होंगे, और आप लोग कहाँ पर आए? उत्तराखंड। तो यहाँ अलग ही है, यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ का रहन सहन अलग है, यहाँ खाना अलग है, राइट। यहाँ का वातावरण क्या है? बॉम्बे के लिए ये वातावरण क्या है? ठंडी है, ये तो बोले गर्मी चालू होती है, 14 डिग्री कुछ नहीं है। यहाँ ठंडी होती तो बहुत पावरफुल ठंडी होती, बहुत ठंडी होती है यहाँ पर, खास करके यहाँ के लोगों का अलग, हमारा अलग है। तो बारह साल में एक बार यहाँ कुंभ होता है। अभी अपना कुंभ हुआ था कहाँ पर? प्रयाग में। तो आज हम शाम को जाएंगे हरि की पौड़ी, जहाँ स्नान कार्यक्रम भी है। तो वो हरि की पौड़ी में वहीं पर अमृत गिरा था। तो हरिद्वार इज वन ऑफ द कुंभ मेला प्लेसेस। और ऐसा कहा गया है कि हरि की पौड़ी उस जगह पर स्वयं भगवान नारायण ने स्नान किया, उनके चरण का वहाँ पर चिन्ह भी है। वहाँ रोज गंगा आरती होती है, वो हम देखेंगे गंगा आरती। हरिद्वार में यहाँ पर जो है, जिस प्रकार से क्षेत्रपाल भगवान शिव जी है, तो शिव जी जहाँ होते हैं वहाँ देवी भी होती है। तो यहाँ की देवी है मनसा देवी, जहाँ हम जाने वाले हैं इसके बाद। वी आर गोइंग फ्रॉम हियर बाय रोप वे। सो these deities have been here for thousands of years. We're going to visit them, take darshan, pray. When you go to each place, you have to pray. Pray for what? Pray for our spiritual well-being, that we can become better devotees. हमारे जीवन में जो भी अड़थले आ रही है, whatever things is stopping us from becoming more spiritual, please pray. These deities will help you overcome those obstacles. Someone might say, प्रभु जी मुझे सुबह उठने नहीं हो रहा है जप करने के लिए। प्लीज प्रे हियर, बिकॉज हमसे नहीं होता है, पर यहाँ प्रार्थना करने से एक पुश मिलेगा, बड़ा अच्छा पुश। वी कैन ओवरकम आवर
conditionings. Someone can pray. मेरा माला जो है ना रात के 12 के पहले खत्म ही होता नहीं, तो 12 बज जाते हैं, मेरी बज जाते हैं और माला भी 12 बजे होता है. So you can pray here that my spiritual life should improve. How many of you think that chanting सुबह होना चाहिए? हाथ ऊपर करो. How many of you every day chant early in the morning, every single day? Raise your hands. Both. Right? So we can pray. How many of you feel that I want to become very good devotee, but my family is not allowing me, they're doubting me? बहुत लोग ऐसे हैं. प्रार्थना करो. क्या प्रार्थना करेंगे? कि सब फैमिली वाले फेवरेबल बन जाए. जैसे हरिद्वार से जाऊँ मैं तो लोग मुझे गार्लैंड पहन के वेलकम करेंगे. आजा बेटा, अगली बार मुझे भी लेके जाना हरिद्वार. Pray, they help you for spiritual life. If your job is not good, very tiring job, इसके कारण आपको चैंटिंग नहीं हो रहा है, संडे को आपको जाना पड़ता है ऑफिस में, संडे प्रोग्राम मिस हो रहा है, प्रार्थना करो. I get a job which can help me in spiritual life. This is good to ask. If you're planning to get married, pray. Let me get a good wife who will help me in becoming more Krishna conscious. If you're planning to be brahmachari, pray that I become good brahmachari. So this is an area where we can pray. And they are all waiting for us to bless. So wherever we go, Manasa Devi, Hari ki Pauri, keep praying. भूलना मत, फोटो निकालने में भूलना मत. फोटो निकाल के पहुंच गया, अपना फोटो पहुंचा दिया लेकिन तू पहुंचा नहीं यहाँ पर. Don't forget to pray. So Manasa Devi is there, Hari ki Pauri. So what is this Haridwar? Ganga is flowing very fast here. बहुत फास्ट है. मायापुर में जाएंगे गंगा फास्ट है, लेकिन यहाँ ज़्यादा फास्ट है क्योंकि ऊपर से आ रही है. तो यहाँ पर गंगा बहुत शोर भी करती है, इतना गश. आप जाएंगे ना, इतना भयंकर आवाज़ है गंगा का. ऋषिकेश में जाओ, कहीं भी जाओ आप, देवप्रयाग में तो इतना आवाज़ आएगा कि सुन नहीं पाएंगे आप. चिल्ला के बोलना पड़ेगा, हरि बोल, सुनाएगा. तो जब यहाँ गंगा आई ऊपर से, तो गंगा देवी ने देखा कि 7 सप्त ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे थे. तो गंगा देवी समझ गई इनके तपस्या में बांधारी लेके आना है. और 7 अलग जगह पे बैठे थे, तो गंगा देवी ने अपने आप को डिवाइड कर लिया जिससे शोर कम हो जाए. और 7 का संग लेते लेते ही गंगा आगे गई और फिर से मिल के गंगा आगे. मजा आएगा. गंगा इज पर्सन. If some of you have read Journey Home, राधानाथ महाराज को ये गंगा ने हरे कृष्ण मंत्र सुनाया है. तो गंगा में जाने के बाद हरे कृष्ण मंत्र एटलीस्ट भूलना मत. राधानाथ महाराज को सुना है, हम भूल जाएंगे गंगा में हरे कृष्ण को. तो यहाँ सप्त ऋषि थे, इसलिए यहाँ पर 7 भागों में विभाजित हो गई. फिर से एक साथ आके गंगा आगे बढ़ती. So Ganga starts from Gomukh and Ganga continues till Ganga Sagar. कितना बड़ा जर्नी देखो. Ganga is flowing. Focus. Kunti Maharani is saying, just like Ganga is flowing. कितना सारा ऑब्स्टिकल आ रही है, ऑब्स्टिकल को ऐसा करके निकल जाती है. Because Ganga is wanting to go to the ocean. So Kunti Maharani is praying, the ocean is like Krishna. My mind is like Ganga. My mind should be like Ganga. My mind is not Ganga now. She's praying, let me mind be Ganga, that she is just waiting to reach
गंगा सागर टू मीट द ओशन, उसी तरह मेरा मन भी कहाँ जाए, कृष्ण के पास जाए। अभी क्या हो रहा है, कृष्ण से विरोध जा रहा है, ऑपोजिट जा रहा है। लेट मी, सो व्हेन वी गो टू गंगा वी कैन प्रे टू गंगा, मदर गंगा प्लीज हेल्प मी, सो माय माइंड कैन focus on Krishna consciousness, focus on my service, focus on my chanting, and remove all the focus on all other things which is distracting my Krishna consciousness. There is so many things which are distracting my Krishna consciousness. Please remove all distractions and let me focus on reaching Krishna's lotus feet like Ganga. So this is a prayer. We can chant here. हरिद्वार में यहाँ से 5 पांडव ऊपर गए थे, तो कहा जाता है कि स्वर्ग द्वार भी कहते हैं, स्वर्ग द्वार। महाभारत में लिखा है कि पांडव स्वर्ग में गए थे, लेकिन आप शास्त्र पढ़ेंगे, वैष्णव शास्त्र, उसमें लिखा है स्वर्ग द्वार, स्वर्ग के द्वारा वो बाद में भगवत धाम गए थे। तो बाकी लोगों को पता लगता है कि वो स्वर्ग गए थे, लेकिन डिवोटीज को पता है कि स्वर्ग के बाद वो कहाँ से वहाँ कहाँ गए थे, वो भगवत धाम गए थे। तो जब यहाँ से जा रहे थे, कि पूरे हिमालय में बहुत पास टाइम से पांडवों के, तो यहाँ पर भीम जी को पानी चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, बिस्तरी खरीदा नहीं, उन्होंने अपने घुटने से एक जमीन वार किया तो पानी आ गया। तो आज भी वो कुंड है, उसका नाम है भीम गोड़ा, भीम गोड़ा कुंड। शायद आज दर्शन कर पाएंगे आप लोग। तो ऐसे यहाँ पर अनेक छोटे छोटे चीज है। वी विल नॉट एबल टू गो टू ऑल प्लेसेस इन हरिद्वार, बट द पॉइंट इज दैट just by coming here we are accessing the mercy of Haridwar, we are accessing the mercy of great sages. We will be going tomorrow Rishikesh. ऋषिकेश का मतलब है कंट्रोलिंग वन सेंसेस। वहां पर एक ऋषि है, ऋषि थे, उनका नाम है रैभ्य ऋषि। उनके द्वारा ये जगह का नाम ऋषिकेश पड़ा। ऐसा कहा गया है कि सत्युग की बात है, ब्रह्मा जी जो है वो 4 वेद, 4 Vedas he got. He became very knowledgeable because he had 4 Vedas. So some pride came in his heart that I am very knowledgeable. I have 4 Vedas knowledge. वेद मतलब ज्ञान। सब कुछ जो जानना है वो वेद में लिखा है। तो ब्रह्मा जी को सब ज्ञान आ गया, थोड़ा गर्व हो गया। भगवान ने देखा, कृष्णा saw my devotee has become proud. Krishna doesn't like pride. Krishna can tolerate all anarthas. लस्ट है ना, ठीक है, मैं तुझे संभाल लूंगा। क्रोध है ना, कोई बात नहीं, फिर भी तू मेरा डिवोटी है। लेकिन प्राइड कृष्ण डजंट टॉलरेट। फ्रॉम हिज सीट वेयर इज स्लीपिंग 2 drops of water fell down. That 2 drops of water became 2 demons, Madhu or Kaitabh. Madhu Kaitabh. And these demons were very powerful. They came to Brahma and stole the Vedas. उस समय वेद कोई किताब नहीं था। It was dissemination of knowledge directly, एक खोपड़ी से दूसरे खोपड़ी में, because it was spiritual, subtle. तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी का ब्रेन को हैक कर दिया। ब्रह्मा जी के सिस्टम से ही 4 वेद गायब। तो ब्रह्मा जी एक दिन सोए 4 वेद लेके, अगले दिन बोले अरे वेयर आर द 4 वेदास, फाइल मिसिंग। परेशान हो गए। नहीं रियलाइज
I made a mistake. He approached Lord Narayan. Please help me. So Lord Narayan took the form of Hayagriva. Hayagriva means Lord's form as half man, half horse, horse head. बड़ा युद्ध हुआ. एक्चुअली क्या हो गया, मधु कैटव ने उस वेद को गुप्त रूप से उसके संचित कर दिया, कहीं तो छुपा दिया उसको, हैक करके उस ज्ञान को, और भाग गया वहां से. हयग्रीव भगवान वेंट, रिमूव दैट ज्ञान एंड गेव टू ब्रह्मा जी. ब्रह्मा जी वाज वेरी हैप्पी. मधु कैटव को पता चला कि वो जो छुपा के रखा था, it went back to Brahma ji. So they came to attack Brahma ji, Madhu Kaitav. Brahma ji asked for help. Lord Narayan had a fight with Madhu Kaitav. And finally, after a long fight, Lord Narayan killed Madhu and Kaitav demon. After killing, Lord was thinking, बड़ा काम कर दिया है. Was looking here and there. दूर से देखा उन्होंने हिमालय के नीचे रैब ऋषि, मेरे डिवोटी, तपस्या कर रहे हैं बहुत सालों से. लेट मी गो एंड मीट हिम. सो लॉर्ड नारायण केम हियर इन द फॉर्म ऑफ चतुर्भुज अवतार एज ऋषिकेश हियर, एंड ही वाज वाचिंग. वहाँ एक उस समय आम का पेड़ था, तो भगवान आम के पेड़ पर थे, वहाँ देख रहे थे. तो भगवान की वजन से आम का पेड़ झुक गया ऐसे और टेढ़ा हो गया. तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ा कुब्ज अम्रक. अम्र मतलब मैंगो पेड़ और कुब्ज मतलब टेढ़ा. So Lord came in front of Raib Rishi and asked him for benedictions. It is said Lord Raib Rishi was very happy and he told Lord Ram, Lord Rishikesh to come, to stay here only and bestow his benedictions, his blessings to everyone who come here. तो ऐसा कहा गया है कि भगवान ऋषिकेश यहाँ पर आके स्थित हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ा ऋषिकेश. हरिद्वार से 1 घंटा दूर ऋषिकेश है. और भगवान ने ऋषिकेश नाम क्यों दिया? कहा कि रैब ऋषि ने यहाँ पर ऋषि का ईश, अपने ऋषि यानी इंद्रियों को यहाँ पर कंट्रोल करके रखा था, इसलिए नाम पड़ा ऋषिकेश. तो इस तरह से ऋषिकेश में काफ़ी कुछ देखने लायक है. लक्ष्मण झूला, राम वगैरह, कल हमारी कथा में जिसके बारे में बोलेंगे. तो ये ऋषिकेश है, आसपास ही है हरिद्वार, ऋषिकेश. तो ये पूरा जो पर्वत का शिखर जो हम देख रहे हैं, देखेंगे यहाँ से हम लोग, यहाँ पर सिर्फ चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है. कल आपको उसका अनुभव हो जाएगा. कल आप जब जाएंगे तो कभी लेफ्ट में, कभी राइट में हिलते रहेंगे बस. मैं पहली बार जब गया था 4 धाम में, तो मैं एक्साइटेड था. मैं आपको वार्न नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. मैं खिड़की के बगल में बैठ गया कि डायरेक्ट देखना है क्या चल रहा है. तो बस चढ़ी तो मज़ा आ गया. जब चढ़ते गई तो बोला बाप रे, नीचे देखने पा रहा था, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस नहीं है इतना खाई और नीचे कुछ नहीं है. और कभी कभी बस ओवरटेक करती है ना, सच में हरी बोल. तो उत्तराखंड का जो यहाँ का बस है, अलग बस होता है. अब बॉम्बे का बस नहीं आ गया यहाँ पर. उत्तराखंड का बस अलग, इनके ड्राइवर भी अलग, अलग लाइसेंस होता है इनको. घाट घाट, कभी ऐसा कभी ऊपर. तो यहाँ पर देहरादून बगल में ही है. तो देहरादून नाम, देहरादून, डेरा, बहुत ऋषि मुनियों ने वहाँ डेरा बसाया. दून मतलब वैली. तो चढ़ना है और नीचे उतरना है, देहरादून. तो यहाँ के नाम ऐसे ही सब है. तो कोई पर्वत है, कोई वैली है.
but it's a very beautiful place to see, behold. तो कल आप ट्रैवल कर रहे हैं, कभी भी आप ट्रैवल करें, आँख खुला रखो और ये सब स्थान देखिए, आँख प्यूरीफाई हो जाएंगे। जनरली हम प्रसाद लेके बैठते बस में, तो क्या होता है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, सो जाते हैं। और जब आता है तो उठा, हे हरी बोल, चला गया, हाँ गया क्या, कहाँ आगे मालूम नहीं। आँख खुला रखिए, देखते रहिए नज़ारा। हिमालय देखिए, एक के बाद हिमालय पर्वत, पर्वत के बाद में पर्वत के बाद में पर्वत के बाद में पर्वत, एंड ओनली you'll be amazed. People are staying there on the hill for generations. पहाड़ में. So I wish you all a very happy yatra. We're starting our yatra today, and hope that you can get the maximum benefit of this yatra and experience fulfillment of spiritual life. After this yatra, you should feel that ऐसी यात्रा हर दिन हमारे जीवन में होनी चाहिए। हरि बोल।